Hello students, I am Nehal sir, your maths faculty. Today we completed the last topic of the trigonometry. Is the prove that questions, right? We already taught in previous lecture normally the identities of trigonometry. So now we use this all identity in the prove that kind of sums. Okay, so the question number 5 of the 1 cosec theta minus cot whole square is equal to 1 minus cos and 1 plus cos theta, right? Okay, so let's see. First write down the LHS. Okay, so first here LHS, right? So here the LHS is equal to cosec theta minus cot theta, right, whole square. So here cosec theta means 1 upon sin theta minus cot, that means cos theta upon sin theta, right? Okay, and here whole square. So now here take the LCM. So you take the LCM 1 minus cos theta, right, whole square upon sin square theta, right? But you know that 1 minus cos theta whole square, right, is as it is upon sin square theta matlab 1 minus cos square theta. So you apply the formula 1 minus cos theta. Okay, 1 minus cos theta. Okay, 1 minus cos theta, right, whole square as it is, and upon, this is the factor of a square minus b square. So a plus b, so 1 plus cos theta, okay, and 1 minus cos theta, right? Okay, so no problem for this. Okay, now you cut the 1 minus cos theta 1 times. So remaining is equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. Okay, see the questions. This is our RHS, right? So here the LHS is equal to RHS. So hence the proof. Okay, students. So we apply only the simple identity. Chalo, clear? Now question number 2 of the 5 of 5. Here your function is equal to cos A upon 1 plus sin A plus 1 plus sin A upon cos A, right, is equal to 2 sec A, right, 2 sec A. Understand? Okay, now so first write down the students LHS left hand side. So first cos A upon 1 plus sin A, right, plus 1 plus sin A upon cos A. ओके, चलो बच्चों पहले क्या प्रोसीजर करेंगे आप सोचो, राइट? तो यहाँ पे हमारे पास और कोई स्कोप नहीं है, तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे. क्या कर देंगे? वी टेक द एलसीएम. ओके, नाउ cos A into 1 plus sin A, right? Okay, so here you know that cos square A plus 1 plus sin A whole square, right? Now चलो बच्चों अब क्या करेंगे, तो हम लोग स्प्लिट कर देंगे. क्या कर देंगे? स्प्लिट इसको. तो यू हैव दी cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, हमने A प्लस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्मूला अप्लाई कर दी यहाँ पे. सो साइन स्क्वायर A, राइट, अपॉन cos A into 1 plus sin A, right? So now students you have the sin square theta plus cos square theta, तो 1 होता है, and 1 plus 1 कितना होता है? 2. तो I can written here 2 plus 2 sin A, right, upon cos A into 1 plus sin A, right?
So again 2 is common. So 1 plus sin A upon cos A into 1 plus sin A, right? So see this, okay, 1 plus sin A cancel, 1 plus sin A cancel. Okay, so you got the answer. That means the 2 upon cos A. 1 upon cos क्या होता है बच्चों? sec. तो 2 as it is, 1 upon cos को आप क्या लिख सकते हो? sec A. It is our RHS. So here LHS is equal to RHS. Hence again proof. Got it? Now question number 3. हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते रहेंगे. इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. We need more practice, okay, for this kind of questions. Okay, so the question number 3, tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta 1 minus tan theta is equal to, okay, is equal to, यहाँ पे हमें क्या करना है? 1 plus is equal to 1 plus sec theta into cosec theta प्रूव करना है बच्चों, राइट? ओके, तो चलो LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा बच्चों? इधर tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस, ओके, cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, राइट? चलो अब क्या करेंगे? कोई आइडेंटिटी डायरेक्टली हमारे पास नहीं है, तो हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे. सो tan थीटा डेट मीन्स sin थीटा अपॉन cos थीटा, ओके, upon here 1 minus cos theta upon sin theta, right? Okay, which में plus again cot theta, that means the cos upon sin upon 1 minus tan की जगह पे आप लिखोगे sin theta upon cos theta, right? Now here, okay, so from this आप क्या लिखोगे यहाँ पे? साइन थीटा एज इट इज बच्चों अपॉन कॉस थीटा एज इट इज. नीचे एलसीएम ले लो, राइट? तो आपका जो एलसीएम है वो साइन थीटा है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा अपॉन क्या है आपके पास? साइन थीटा. फिर से प्लस अगेन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. यहाँ पे एलसीएम लोगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आया बच्चों, और अपॉन में क्या आ गया? कॉस थीटा, राइट? अब एक चीज आपको समझनी है यहाँ पे कि देखो फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म्स आर टुगेदर. ये दोनों है एल फॉर्म में, और ये दोनों बच्चों क्या आ जाएंगे? ओके, ऊपर आ जाएंगे, राइट? तो सो हियर क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा हो गया. क्या हो गया बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इधर क्या आ गया? कॉस नीचे आ जाएगा. सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर टुगेदर, so sin theta minus cos theta, understand? Okay, plus similarly here the cos square theta upon, okay, sin theta into bracket cos theta minus sin theta, understood? Okay, now ओके, नाउ अब साइन स्क्वायर थीटा बच्चों एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन स्टेप पॉसिबल है तो सेम आने चाहिए जिससे हमें आसानी रहे. सो माइनस कॉस थीटा, ओके, यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ. क्यों? आपको रीजन बता देता हूँ. तो ये साइन थीटा तो है ही, ये क्या हो जाएगा? कॉस माइनस साइन है, माइनस कॉमन निकाल दो तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा, ओके, माइनस कॉस थीटा, राइट? अब देखो इसका रीजन क्या है, तो मैं आपको सिंपली रीजन बता देता हूँ बच्चों कि ए आप ऊपर तो माइनस ए प्लस था, ये माइनस हो गया,
और यहाँ पे तो आपका कॉस स्क्वायर थीटा तो एज इट इज रहेगा, राइट। कॉस स्क्वायर थीटा क्या रहेगा बच्चों, एज इट इज। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, राइट। सो इज इक्वल टू फ्रॉम दिस, तो क्या करोगे, अब एलसीएम परफेक्ट हो गया बच्चों। तो एलसीएम क्या आ गया, साइन थीटा आया, कॉस थीटा भी आया, और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अंडरस्टैंड? ओके, तो ये आपने क्या बना दिया, यहाँ पे एलसीएम हमने ले लिया। चलो अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं। तो अब देखो ध्यान से हमें देखना है कि क्या हुआ। तो यहाँ पे कॉस साइन माइनस है, कौन सी टर्म्स नहीं है, 1 2 3 टर्म में से कौन सी टर्म्स फर्स्ट में नहीं है, साइन नहीं है, और ऊपर साइन स्क्वायर है तो साइन क्यूब हो गया। क्या हो गया बच्चों, साइन क्यूब थीटा। टेक द एलसीएम। ठीक इसी तरह यहाँ पे क्या आ गया, कॉस क्यूब थीटा आ गया। क्या आ गया, कॉस क्यूब थीटा। चलो ओके, अब इसकी फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्मूला क्या, ए माइनस बी। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बच्चों। ओके, फिर फर्स्ट टर्म स्क्वायर, सेकंड टर्म स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, एंड माइनस है तो प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। दिस इज अवर ओके सिंप्लीफिकेशन, राइट। चलो अब आगे देखते हैं। तो हमारे पास क्या बच रिमेनिंग रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। ओके, तो यहाँ से आप एक चीज तो आपको भी क्लियर हो गई कि ए ब्रैकेट कैंसल और ए ब्रैकेट कैंसल, राइट। सो वी हैव ओनली द स्टेप्स आर, हमारे पास स्टेप्स में क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। अपॉन में क्या रिमेनिंग रहा, तो अपॉन में आप क्या लिख सकते हो बच्चों, साइन थीटा, क्या लिख सकते हो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमें राइट। ओके, स्प्लिट कर दो, मतलब अलग कर दो इसको। तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। आपने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पे अलग कर दिया, राइट। हाँ, तो अब कोई बात नहीं, अब आपके पास है तो देखो यहाँ पे ए टर्म्स कैंसल, ए टर्म्स भी कैंसल, राइट। ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, सो देयरफॉर इज इक्वल टू करके ये आपके पास आ गया। तो 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉस सेक होता है, 1 अपॉन कॉस सेक होता है, एंड प्लस 1, क्या हुआ, प्लस 1। सो इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, RHS। तो LHS इज इक्वल टू RHS, राइट। तो हम नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपका जो स्टार्टिंग स्टेप्स है वो बहुत परफेक्ट आना चाहिए, जिससे आपको कोई एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए सॉल्व करने के अंदर। अंडरस्टैंड? चलो अब आपको प्रूव करना है यहाँ पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, ओके इसका, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ओके दोनों अलग अलग से आपको देख के ही पता चलेगा। ओके, तो क्या पता चलेगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये रहा 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। क्या है, 1 माइनस कॉस ए, राइट। कोई बात नहीं, चलो हम इसका यूज करेंगे सॉल्व करने में, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास जो है LHS, लेफ्ट हैंड साइड्स, 1 प्लस सेक ए अपॉन क्या हो जाएगा, सेक ए आ जाएगा, अपॉन सेक ए, बराबर है। ओके, तो ये कर दिया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, तो और कोई ऑप्शंस हमारे पास नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेक की जगह पे कॉस कर देंगे।
क्या कर देंगे, केस की जगह पे कॉस। ओके, और कोई है नहीं तो बस सेक्स की सेक है, उसकी जगह पे आप क्या कर दो बच्चों, कॉस कर दो, बात खत्म। तो 1 प्लस सेक दैट मीन्स 1 अपॉन कॉस ए हो गया। एंड यहाँ पे तो है ही, सो 1 अपॉन क्या करोगे, कॉस ए, क्या करोगे 1 अपॉन कॉस ए। अंडरस्टैंड, राइट। तो कुछ नहीं किया, आपने सेक की जगह पे रख दिया। अब टेक द एलसीएम, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉसेक ए प्लस 1 खाली बचेगा, क्यों, दोनों में से। लेकिन अभी ऐसा आपको लग रहा है तो थोड़ा हम लोग एक स्टेप्स लिख देते हैं। अंडरस्टैंड, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। ओके, सो फिर 1 अपॉन कॉस ए एज इट इज आया। ओके, अब आप यहाँ से क्या करोगे, कॉस ए क्या हो गया, कट हो गया। सो यू गॉट ओनली द आंसर इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस कॉसेक सॉरी कॉस ए, 1 प्लस ओके कॉस ए, बस ये आपका ये आ गया, राइट। चलो नाउ ओके, अब यहाँ से हम लोग RHS भी ले लेते हैं, राइट बच्चों। चलो RHS क्या है, ओके यहाँ पे क्या लिखा है, RHS बच्चों साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस है। चलो फॉर्मूला साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, राइट। और कुछ हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं थी, इसलिए इस आइडेंटिटी का यूज किया। अब जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर्स क्या होते हैं, मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं। 1 प्लस कॉस है मतलब a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए, राइट, अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये तो है ही, राइट। तो हमने ये रख दिया, राइट। ओके, चलो अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस है कैंसिल हो रहा है, अंडरस्टैंड। तो ये आपने कैंसिल कर दिया, तो इज इक्वल टू क्या बचा आपके पास, ओके ओनली द 1 प्लस कॉस ए, राइट। सो मैं यहाँ पे सो देयरफॉर यहाँ पे LHS इज इक्वल टू क्या आ गया, RHS। तो ये प्रूव हो गया अपने आप, क्योंकि दोनों साइड क्या गए, इक्वल आंसर आए, राइट। तो प्रूव दैट में ऐसे बहुत इजी है, बट आपको आइडेंटिटी बहुत परफेक्ट वे से जाननी चाहिए। ओके, उसके बाद तो आप उसका फॉर्मेशन बहुत अच्छी तरह से मतलब इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चंस आप नॉर्मली बना सकते हो, राइट। ओके, अब अलग अलग तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली आप सॉल्व करते हो, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5, चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ओके। तो कॉस ए माइनस, राइट, एंड प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन है, राइट, एंड माइनस 1, क्या है -1, ओके, इज इक्वल टू आपको क्या प्रूव करना है, नॉर्मली कॉट ए प्लस कॉसेक ए, क्या प्रूव करना है, इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉसेक ए, क्या बच्चों प्रूव करना है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ओके, तो अलग अलग आइडेंटिटीज का यूज करके भी आप कर सकते हो, ओके। और आपके पास और कोई चांस है तो भी आप कर सकते हो कॉट और कॉस लाने के लिए, ओके। ये सम बहुत अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन है द क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो सबसे पहले तो आपके पास है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, ओके, एंड कॉस ए प्लस साइन ए एंड -1, बराबर है, ये हमारे पास ए वैल्यूज है बच्चों, राइट। ओके, अब देखो
इसका हम लोग, ये तो है ही हमारे पास। तो अब मैं यहाँ पे नॉर्मली देखो ऊपर नीचे साइन से डिवाइड कर देते। सो डिवाइड ईच टर्म्स ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। ओके, बाय साइन ए। सो कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। राइट, ये तो आपने पूरा का पूरा कर दिया। राइट, अब क्या है हमारे पास डिनोमिनेटर, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। राइट, ओके, क्या करोगे आप? तो देखो बच्चों, ये तो क्या हो गया, कॉट हो गया। क्या हो गया? कॉट ए माइनस 1 हो गया, और 1 अपॉन साइन को आप क्या कहते हो? कॉस सेक। इट इज आइडेंटिटी। ओके, राइट। देन आफ्टर अगेन कॉस अपॉन साइन, दैट मीन्स कॉट ए, फिर साइन अपॉन साइन, दैट मीन्स 1, 1 अपॉन साइन, दैट मीन्स कॉस सेक ए। अंडरस्टैंड? बस अब आपका सम शुरू होता है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, फिर से मल्टीप्लाइंग बराबर कॉट ए इंटू कॉसेक ए कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कॉट ए इंटू कॉसेक ए आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ओके, और फिर इसको आप अलग कर सकते हो अगर आपको आइडेंटिटी पता नहीं है तो, और आइडेंटिटी पता है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ओके, चलो, आइडेंटिटी पता है क्या है? आइडेंटिटी कॉसेक और कॉट की आप जानते हो, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मिनिमम मतलब 3-4 मेथड्स है जो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो कहीं पर भी। अंडरस्टैंड? ओके, तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करते हो और वो भी कब करते हो, ओके, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी ले रहा हूँ कि देखो कॉसेक ए प्लस कॉट ए में पहले लिख देता हूँ। राइट, इसको मैंने ब्रैकेट में ले लिया, और ये बचा क्या? -1। राइट, ये क्या बचा? -1। आगे बढ़ते हैं। अपन में जो है वो मैं एज इट इज छोड़ दूंगा। कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। राइट, अब देखो अब जो 1 दिख रहा है वो आइडेंटिटी है। आप उसकी जगह पे क्या लिख सकते हो? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अंडरस्टूड? ओके, अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए। राइट, एंड प्लस 1। ओके, चलो आगे बढ़ लेते हैं बच्चों। तो नॉर्मली आपने चलो ओके, यहाँ पे अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फैक्टर से बच्चों, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन निकल जाएगा। राइट, सो रिमेनिंग टर्म क्या बचेगा? इनटू ब्रैकेट 1, इसके फैक्टर माइनस आएंगे ना एक, तो माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए। राइट, इसके दो फैक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा करके अपॉन में अब मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। ए 1 प्लस ए पहले लिखता हूँ माइनस कॉसेक ए, ओके, एंड प्लस कॉट ए। अंडरस्टैंड? ओके, चलो, ये तो आपने अपने हिसाब से बना दिया। ओके बच्चों, चलो, ये तो आपने बना दिया। अब आपको यहाँ पे एक सीधी चीज दिख रही है, कौन सा? तो कि ए पूरी टर्म्स, ओके, और ए पूरी टर्म्स क्या हो गई? कैंसिल हो गई। क्या हो गई? कैंसिल। अंडरस्टूड? ओके, अब आप क्या करोगे? सो इज इक्वल टू यू हैव द रिमेनिंग है कि क्या है? सो कॉसेक ए
plus cot A. ओके, सो दिस इज अवर RHS, राइट। तो ये पैटर्न जो है आपने अभी देखी हो, बहुत बार प्रूव हो गया। ओके, अलग अलग एंगल से आप इसको सॉल्व कर सकते हो बच्चों, राइट। ये ऐसा क्वेश्चन था, राइट। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? सो रूट ऑफ राइट, हमें प्रूव क्या करना है इसके अंदर? टेन थीटा लाना है। क्या लाना है? सेक प्लस टेन है। क्या लाना है? इसको भी मैं अलग अलग फॉर्म में ला सकता हूँ। ओके, यही 6 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। सेक ए प्लस टेन है। क्या करना है हमें? सेक ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन है बच्चों। इसको मैं और कर सकता हूँ 1 सेक ए माइनस टेन, ये भी हम लोग ला सकते हैं, राइट। चलो तो LHS, ओके, LHS है आपके पास 1 प्लस राइट 1 प्लस 1 माइनस साइन ए, राइट। मैं इसको कॉन्जुगेट सर्ट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बच्चों। तो माइनस है, सो 1 प्लस क्या आएगा? साइन ए, ओके, अपॉन 1 प्लस साइन ए। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ अब सब कुछ रूट में ले लेते हैं। तो इधर क्या आएगा? 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, ओके, अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर है, राइट। अब मुझे बताओ, नॉर्मली हम लोग रूट पे लिखते हैं, ओके, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर होता है, राइट। स्क्वायर स्क्वायर रूट लेके गायब, तो क्या बचा? 1 प्लस साइन ए रिमेनिंग बचा, अपॉन क्या गया? कॉस ए, राइट। अलग कर सकते हैं हम लोग बच्चों इसको, 1 अपॉन कॉस ए भी लिख सकते हैं, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए भी लिख सकते हो। तो आपका ए वाला रिजल्ट तो आ गया बच्चों, राइट। क्या होगा? ए वाला रिजल्ट तो आपके पास तो आ गया, ओके। बट इसी को हम लोग थोड़ा चेंज कर सकते हैं ना। मैंने पहले बोला था कि सेक ए एन प्लस 10 है, ये तो मांगा था, वो रिजल्ट आ गया मान लो। बट और एक मैंने बोला कि 1 अपॉन साइन लाना है, तो कुछ नहीं करना, ये तो आपका आ गया। चलो RHS, पर ये हिंट दे रहा हूँ। तो अगर आगे होता तो सेक ए प्लस 10 है, राइट, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 तो नहीं, बट क्या करेंगे? सेक ए माइनस 10 ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं आप। सेक ए माइनस 10 है, जो नया रिजल्ट आने वाला मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये सम तो यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस क्या गया? 10 स्क्वायर है बच्चों, अपॉन क्या गया? तो क्या? सेक ए माइनस 10 ए, राइट, इज इक्वल टू, ये तो आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बच्चों 1 होता है, राइट। क्या होता है? 1 होता है, राइट। तो यहाँ पे आ गया सेक ए माइनस 10 है। तो एक नया रिजल्ट इसी क्वेश्चन के अंदर ये लोग इनपुट कर सकते हैं, ओके। आई थिंक अब आपको आइडेंटिटीज का यूज कैसे करना है वो समझ में आ गया होगा, राइट बच्चों। अब हम लोग और एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और थोड़े क्वेश्चन जो बोर्ड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, ओके। तब तक टिल देन एंड बाय बाय।